Hello everyone in the Ansarkari, and again we are meeting on the polity sessions, and we'll be dealing today from the chapter preamble, and we'll be dealing what preamble is, how preamble was got incorporated in the constitution, and so on and so forth. So I would like to have a question from our companion Shri Mansi. So Mansi, please ask your question which you raised Okay, so yesterday. my doubt is that when we talk about the basic structure doctrine, it says ki you can't change the basic structure of the constitution, and in that fundamental rights is a part of it. You can't change that. The parliament cannot change it. So under the EWS reservation, we have added Article 15 clause 6 and 16 clause 6. So that is also changing fundamental rights. So will this not lead to violation of the basic structure doctrine? No, ओशिका आप बताओ फिर मैं बताता हूँ. बस यू कैन बता दो आप. ठीक है. तो आपका जो क्वेश्चन आपने पूछा कि जब फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही रिजर्वेशन की बात है आर्टिकल 16 क्लॉज 4 में 3 में, तो जब ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया अंडर 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, तो क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को डिलीट नहीं कर रहे हैं या उसमें छेड़खानी नहीं कर रहे हैं? तो पहली बात तो ये कि फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आप अमेंडमेंट कर सकते हैं, उनको अल्टर कर सकते हैं, उनको डिलीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशन बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो आप कर तो सकते हैं, पार्लियामेंट कर सकती है. फंडामेंटल राइट आर्टिकल जो हमारा राइट टू प्रॉपर्टी था वो फंडामेंटल राइट ही था, उसको पूरा ही निकाल लिया गया. तो फंडामेंटल राइट दो पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर बट कैन बी डिलीटेड प्रोवाइडेड इट इज स्क्रूटिनाइज्ड बाय द जुडिशियल रिव्यू बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. नंबर 1. Number 2, Supreme Court has given its judgment that 50% ceiling limit on the reservation came in the year 1992 in the Indira Sahni case. Indira Sahni judgment जिसको बोला जाता है. There came the threshold of 50% reservation. That 50% reservation will be the criteria above which the reservation cannot exceed because it will harm the equality in the society. But EWS reservation is given on a specific ground, that is the economic backwardness in the society, and that is upheld by the Supreme Court that yes, we can exceed to the 60%. And because in the states, many states like Tamil Nadu and other states, already the ceiling has been breached out. But in the state, so the reservation for the EWS is not considered as against the basic structure because fundamental rights can be abrogated provided it is scrutinized by the judicial review and upheld on the lines of the constitution. So as you mentioned that we can also delete certain fundamental rights, for example, the right to property. So can we also add a new fundamental right? Yes, we can. Article 21 में ऐड होता रहता है. प्रवेश, वो तो derived fundamental right हो गया ना. Absolutely something new idea can be introduced as a fundamental right. प्रवेश, Yes, I think it can be included. Yes, बताइए. under the Golaknath case 1967, Supreme Court held that you cannot amend any fundamental right because constitutional amendment also include the law that is being given under Article 13. Law includes constitutional amendment और आप हटा नहीं सकते फंडामेंटल राइट. लेकिन उसके खिलाफ फिर 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उस बाद में 1976 में. उसके पहले कुछ अमेंडमेंट आया जिसमें फंडामेंटल राइट्स वर रिमूव्ड. जब केशव नंदा भारती केस होता है 1973 में, इट सेड that you can amend, you can remove, provided that it does not violate the basic structure. Basic structure will be, it is not defined, but it is based on the interpretation of the constitution by the Supreme Court और उसको वाइडन किया जाता है धीरे धीरे. तो आपका जो क्वेश्चन है कि फंडामेंटल राइट न्यूली ऐड कर सकते हैं, तो ऑलरेडी फंडामेंटल राइट न्यूली ऐड कर ही दे. राइट टू प्राइवेसी आ गया एक तरह से. तो इट इज बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का एक्सपेंशन बाय द सुप्रीम कोर्ट. तो कर ही दे धीरे धीरे. आर्टिकल 21A जो भी ऐड होता है, जो भी ऐड हुआ था 2003 समथिंग, प्रवेश यू कैन करेक्ट मी, तो उसमें भी ऐड किया गया राइट टू एजुकेशन में. तो ऐड तो हुआ ही एक तरह से. प्रवेश कंटिन्यू. आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज का देखिए, 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2011 आया, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी को फंडामेंटल राइट बनाया गया, राइट टू एजुकेशन को बनाया गया, उसके बाद राइट टू फ्री एनवायरनमेंट को बनाया गया. और इसके अलावा जो आवश्यक आपने बोला, आई वांट टू रेक्टिफाई है दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ, constitutional amendment bill is not a law under Article 13. Constitutional amendment bill is a separate thing, law is a separate thing, but both are subject to the judicial review. आप constitutional amendment को नहीं डाल सकते हैं. Okay, so I hope Mansi we have delivered your answer. Yes, it's clear. Okay, so now we are heading towards the preamble.
So in one line, what preamble is? So preamble is considered as introduction of our Indian Constitution, and it is named by various constituent assembly leaders like soul of the Constitution, jewel stick of the Constitution, horoscope of the Constitution. But in the brief, we have to consider that preamble is the introduction of the Indian Constitution, and the constitutional principles are reflected in the principles. That is why it is the introduction. जब हम preamble को देखते हैं तो हमें पता लग जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर क्या होगा, क्या उसके प्रोविजन होंगे, क्या उसकी फिलॉसफी है, क्या उसका प्रिंसिपल है जिसके ऊपर पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आगे लिखा गया है. The important thing about the preamble is the part of the constitution. इसके ऊपर एक लड़ाई होती है और कई केसेस में वो चलती है कि प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, प्रीएम्बल कितना ज्यादा हेल्प करता है, कितना ज्यादा नहीं करता है. और प्रीएम्बल is the fact that preamble was added when the whole constitution was fully compiled. In the later part, the preamble was added in the very first text of the Indian Constitution. preamble के बारे में बात करते हैं कि preamble हमें क्या क्या बताती है. तो लिबर्टी के बारे में बात करती है, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस. So what is liberty? Liberty is when every individual, every citizen is free to do anything subject to the reasonable restrictions in the society. Liberty provides you the capacity development. Liberty ensures that you live with full protection, you live with full freedom, you do every act with full freedom. Equality simply means that you are equal. There is no sort of discrimination, there is no historical injustice, and the state is treating you equal on the equal level playing field. There is no discrimination from the state side. Fraternity is bhaichara, to promote the brotherhood, and justice is the fairness in the society. Parliament laws provide the justice, Supreme Court, High Court verdicts provide the justice. So these are the foundation principles on which the Indian society, Indian Constitution is based, and they are enshrined in the preamble in the detail. Kaushik, now continue. Okay. So this is the image of the preamble of Indian Constitution, which starts that we, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socially secular, democratic republic, and to secure to all its citizens following things. So now the term we. Kaushik, what do you mean by we here? We, I think it means citizens of India. Okay, so we here describes the collective wisdom. Correct. Now, what is the meaning of collective wisdom and collective will? I would say that every person has some form of rights. In this society, every person has some form of right to live, to participate, to do everything. But to run society in a law and order fashion manner, we require a third party, and that is the state. When we are thinking that we should have a third power who can control us, who can provide safety of life and property to us, we deliver and we surrender our rights to that third party, and that signifies the collective wisdom. यानी एक बंदा अपने राइट छोड़ रहा है, दूसरा छोड़ रहा है, और पूरी सोसाइटी अपने अपने राइट छोड़कर किसी थर्ड पार्टी को दे रही है, और उसका नाम होता है स्टेट यानी गवर्नमेंट. वो गवर्नमेंट हमारे को रिप्रेजेंट करती है, और इसीलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टर्म वी का मतलब है कलेक्टिव विल. यानी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जो बाद में चलकर स्टेट का फॉर्मेशन करता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करता है, उसमें सर्वसम्मति है. वी का मतलब ये है यूनानिमस रिजोल्यूशन, यूनानिमस कंसेंसस, कलेक्टिव विजडम. These are 3 to 4 technical terms which signify the term we here. The people of India, जितने भी हम लोग हैं, हम सारे मिलकर के अपने आप को एक कॉन्स्टिट्यूशन देने जा रहे हैं. Sovereign, the meaning of sovereign is that we, the people of India, which simply means that we, the India, will be having the supreme right to decide the matters of international affairs without any due interference of any third party, and the internal matters without any due interference of any second or third party. तो जब भी हम देखते हैं कि हमारा इंटरनेशनल रिलेशंस में जब MEA, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, कुछ किसी मैटर्स पर कुछ बोलती है, तो हम यही कहते हैं कि दिस इज आवर इंटरनल मैटर, प्लीज डू नॉट इंटरफेयर. This is our diplomatic matter, do not interfere. So we are fully sovereign, and that these examples signifies the sovereignty of India. Socialist simply means that we will run on the socialist principles. We will not allow the market to dominate the society. We will always prefer the society to have the larger interest.
we will ensure that societal interest, the tradition, the customs, the rituals of the society pampers equally with the modernism. Now, what kind of socialism we have? Socialism, we have mixed form of socialism or the democratic socialism. Now, what is the meaning of democratic socialism versus socialism? Socialism simply means that the society will upheld over the individual liberty. Individual come beneath and society will come up. हमेशा बात होगी सोसाइटी के लिए अच्छा क्या है. अगर आप कोई भी अल्कोहल लेना चाहते हैं या फिर आप सिगरेट पीना चाहते हैं, तो अगर फुली सोशलिस्ट सोसाइटी होगी तो आपको नहीं पीने दिया जाएगा. लेकिन अगर सोसाइटी होगी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म तो आपको पीने दिया जाएगा. उसमें यही होगा कि आप किसी को हार्म ना करें, आप अपना पर्सनल स्फेयर में पिए. तो वो चीज को सिग्निफाई करता है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. यानी आपकी लिबर्टी को भी प्रमोट किया जाएगा और सोशलिज्म के तहत जो सोसाइटी का इंटरेस्ट है उनको भी प्रमोट किया जाएगा और दोनों को बराबरी पे तोला जाएगा और बराबरी से लेकर जाया जाएगा ताकि सोसाइटी भी हार्म ना हो, इंडिविजुअल की लिबर्टी भी हार्म ना हो. तो इसे बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म. नाउ सेक्युलर, द मीनिंग ऑफ सेक्युलरिज्म वी हैव टॉक्ड नंबर ऑफ टाइम्स कि इटली से ये टर्म का ओरिजिन होता है, जहां पर बात होती है कि टू वर्ड ऑफ पावर. वहां पर चर्च है उसकी पावर है और दूसरा वहां के जो राजा है उनकी पावर है. तो सोसाइटी के अंदर ये टेंशन है कि किसकी बात हम माने. तो इसीलिए वहां पर इस वर्ड का ओरिजिन होता है जहां पर बोला जाता है हमें सेक्युलरिज्म चाहिए. धर्म जो है वो अपना काम करे, स्टेट जो है वो सरकार बनाने का काम करे, वो शासन का काम करे, लॉ एंड ऑर्डर दे. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर की जो सेक्युलर टर्म है ये कुछ अलग बताता है. यहाँ पर बात करते हैं पॉजिटिव सेक्युलरिज्म की. तो सोशलिज्म में डेमोक्रेटिक सोशलिज्म और सेक्युलर में पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, वेयर द स्टेट एंड रिलीजन विल को हार्मोनियसली प्रोटेक्ट द सिटीजन्स. स्टेट जो है अपना काम करेगा, रिलीजन जो है अपना काम करेगा, लेकिन रिलीजन को जब जरूरत पड़ती है तो स्टेट उसकी मदद करेगा एंड वाइस वर्सा. और जब रिलीजन कुछ गलत काम करता है तो स्टेट उसको आके इंटरफेयर करेगा और इंश्योर करेगा कि जो रिलीजन है उसके जो एसेंशियल फीचर्स हैं, एसेंशियल प्रैक्टिसेस हैं, वो कहीं ना कहीं खराब ना हो. तो दिस इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव सेक्युलरिज्म. एंड देन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. Democracy simply means that where the people are the supreme to form the government, to make the government and to derail the government. 5 साल के बाद इलेक्शन होगा, उसमें आप सरकार बनाएंगे भी और बनी हुई सरकार को गिरा भी सकते हैं. तो the right to call and recall the government is simply means of the democracy. यानी people are the supreme to govern themselves. That is the meaning of democracy. And republic simply means that where the head of the state is directly or indirectly elected. It should not be come from a hierarchy. It should not be coming from a lineage family. It should not be come from a kingdom, right? So in Britain we have the republican monarchy, and in India we have republican democracy. So what is the difference between republican monarchy and republican democracy is that here the elections are happening for the head of the state, though it is indirect. हमारे यहाँ पे जो राष्ट्रपति जी होते हैं उनको इनडायरेक्ट चुना जाता है, प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्ट चुना जाता है. लेकिन ब्रिटेन के अंदर जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, जो किंग है, जो हेड ऑफ द स्टेट है, उनको बोला जाता है मोनार्की. और जो किंग है या जो क्वीन होती है इंग्लैंड की, उनका इलेक्शन नहीं होता. वो एक परंपरागत फैमिली से आते हैं और हायरार्की है उनकी, तो वहां पर मोनार्की है. लेकिन वहां पर भी रिपब्लिकनिज्म है. तो रिपब्लिक का मतलब होता है जहां पर लॉ एंड ऑर्डर प्रमोट हो, जहां पर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म प्रमोट हो, जहां पर इंडिविजुअल की जो लिबर्टी है उसको थोड़ा अपर हैंड दिया जाए और जहां पर फेयरनेस हो सोसाइटी के अंदर. सो नाउ Oshik, you continue. Sir, I will add only one point. The socialist and secular was not present in the original preamble. It was included in 1976 42nd Amendment Act. 42nd नाम क्यों पड़ा है? क्योंकि अमेंडमेंट जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उनका टर्म होता है 1 2 3 4. उसे 42nd हुआ अमेंडमेंट एक्ट इन 1976. सोशलिस्ट सेकुलर ऐड हुआ था इसमें. और ये There ऐड कर was सकते one हो. more और term, इंटीग्रिटी नीचे में. integrity. तो इसका बाद प्रवेश यू कैन कंटिन्यू. तो Oshik, आप मुझे बताइए कि सोशलिस्ट सेक्युलर इंटेग्रिटी को उस टाइम पर जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी, 76 में जोड़ने की क्या जरूरत पड़ी? इंटीग्रिटी तो बोल सकते हैं क्योंकि इंडिया वाज फेसिंग अ इशू विद रिस्पेक्ट टू बांग्लादेश वॉर 1971 में आसपास में. देन अकॉर्डिंग टू प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, गरीबी हटाओ आंदोलन स्टार्ट हुआ था. तो सोशलिस्ट पैटर्न पर पूरा एक रिजुवेनेशन हुआ था सोसाइटी का, वेयर बैंक्स वेयर नेशनलाइज्ड 1969 से, और उसके बाद और भी एरिया नेशनलाइज किया गया था. सोशलिस्ट पैटर्न, गरीबी हटाओ. सेकुलरिज्म का प्रमोशन किया गया था फॉर रिड्यूसिंग डिवीजन इन सोसाइटी उस समय. तो इमरजेंसी के पीरियड का ये 1975 के प्लस माइनस.
Yes. प्रवेश So the emergency of 1975 opened the eyes of the constitution, participants, that these two terms, though are present intangibly in the Indian society, but we have to incorporate them in the tangible form so that they can be considered legalized, they can be considered important while declaring a parliamentary law as parliamentary law as justiciable or not, and the Supreme Court can also take the assistance of these terms while declaring any sort of verdict. So now we are talking about justice. Just wait. Justice. So the meaning of justice is fairness. जहां पर आपके साथ अन्याय ना हो. When we talk about the political science, we talk about that what is the basis of revolution. सोसाइटी के अंदर विद्रोह क्यों होता है? हमारे यहाँ भी 1857 के अंदर हुआ, अलग अलग हमारे टाइम पर रिवोल्ट हुए. तो जस्टिस का लेना देना कहीं वहां से है. तो ये बोला जाता है कि जो अगर आपकी सोसाइटी के अंदर दो चीजें नहीं हैं तो वो रिवोल्यूशन को पन पाएंगे और रिवोल्यूशन होगा. पहला है इनजस्टिस और दूसरा है इनइक्वालिटी. So these two are the important cause which leads to the revolution. So to prevent the revolution in the Indian society, we incorporated the principle of justice, and the idea of justice is taken from the Russian Revolution, I think 1917. तो वहां से इस आइडिया को लाया गया. जस्टिस जहां पर बात होती है सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस की. सोशल जस्टिस होता है कि आप सोसाइटी के अंदर किसी भी तरीके का इनजस्टिस प्रमोट नहीं करेंगे. प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, SC/ST शेड्यूल एक्ट, ये सारी चीजें इसी को प्रमोट करने के लिए कि जो हिस्टोरिकल इंजस्टिस हमेशा से होता आया, कास्ट के नाम पर, क्लास के नाम पर, एलिटनेस के नाम पर, वो नहीं होगा. इकोनॉमिक के नाम पर आप जो है, अगर आप सेम पढ़े लिखे हैं तो आपको इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी सेम मिलनी चाहिए, आपके साथ जस्टिस होगा. आपको अगर आपके पास एक बड़ा लैंड का एरिया है, उससे आप इकोनॉमिक वेल्थ उपजा पा रहे हैं, तो दूसरे को भी उतना ही मौका मिलना चाहिए. इसलिए हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स की बात हुई. पॉलिटिकल जस्टिस, आपको इक्वल राइट होगा पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का, जन भागीदारी का. आप पॉलिटिशियन से पूछ सकते हैं, आप पॉलिटिशियंस को वापस बुला सकते हैं, आप उनको रिप्रेजेंट करके पार्लियामेंट के अंदर भेज सकते हैं, आप कानून बनाने के लिए उनको फोर्स कर सकते हैं. तो दीज आर द पॉलिटिकल जस्टिस. आप इक्वली प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़ सकते हैं, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा. तो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द जस्टिस प्रिंसिपल व्हिच इज टेकन फ्रॉम द रशियन रेवोल्यूशन 1917. Now we come on the second thing is liberty. Liberty of thought, expression, belief, faith and worship. So liberty of thought signifies that whatever I'm thinking within myself, no one can stop me. If I'm thinking that within myself that this community is bad, that community is bad, I am fully liberal in thinking that. No one can stop me that. Expression. Whatever I'm thinking within, if I'm speaking outside and expressing that, I have the liberty, but provided that do not harm the societal interest, that do not harm the law and justice, that do not provide a derogatory expression on any particular individual of the society. Belief. I can have any sort of belief. मैं किसी चीज को मानूं, किसी चीज को ना मानूं, ये मेरा अपना बिलीफ है. मैं एथीस्ट रहूं, मैं थीस्ट बनूं, मैं किसी धर्म को मानूं, ये मेरा अपना बिलीफ है, कोई मुझे नहीं रोक सकता. फेथ एंड वर्शिप. मैं किसी भी भगवान के अंदर विश्वास कर सकता हूँ, मैं मोनोथिज्म को प्रमोट कर सकता हूँ, यानी किसी एक भगवान की पूजा करूँ. मैं पॉलीथिज्म, मैं अनेकों भगवान की पूजा कर सकता हूँ. वर्शिप, मैं शांत बैठकर पूजा करूं, मैं मंदिर में जाकर पूजा ना करूं, मैं मस्जिद में जाकर पूजा करूं, मैं एक कास्ट का हूं लेकिन दूसरे कास्ट के रिलीजियस एसोसिएशन का मेंबर बनूं, मुझे कोई नहीं रोक सकता है. आई हैव फुल लिबर्टी. इक्वालिटी. इक्वालिटी ऑफ स्टेट. यस, I have to just specify here liberty of thought and expression through letters, expression to speech, social media, सब इसके अंदर में आ जाएगा. बिलीफ, फेथ आपने आप बता दिया, मोनोइज्म, मोनोथिज्म सब चीज में आ जाएगा. लेकिन इंडिया जो फॉलो करता है वो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव लिबर्टी का बस बता दो आप डिफरेंसेस. ठीक है, तो मैं बता देता हूँ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव लिबर्टी एंड नेगेटिव लिबर्टी. जो प्रिमिटिव सोसाइटीज थी, जब सिविलाइजेशन शुरू होती है तो बात होती है लिबर्टी की. एवरीवन वाज फ्री टू डू एनीथिंग, एवरीवन वाज हैविंग एनीथिंग विद एनीवन. मतलब पूरा जिसको हम जंगल राज बोलते हैं, तो जंगल में सबको फ्रीडम होती है, कोई किसी से नहीं डरता है. अपनी जान बचाने के लिए माइनिंदाई, आप किसी को मारो खाओ, कोई आपके ऊपर थर्ड पावर नहीं है, उसे बोलते हैं जंगल राज. तो उस टाइम पर जो लिबर्टी का इवोल्यूशन होता है उसको बोला जाता है क्लासिकल लिबर्टी, जिसके अंदर बात होती है नेगेटिव लिबर्टी. यानी मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर कोई तीसरी शक्ति नहीं है जो मुझे रोकेगी. आई कैन किल समवन, आई कैन बीट समवन,
आई कैन डू एनीथिंग, दैट इज द नेगेटिव लिबर्टी। लेकिन उसके बाद जैसे सिविलाइजेशन मॉडर्निज्म की तरफ बढ़ी, एजुकेशन की तरफ बढ़ी, साइंटिफिक रिवोल्यूशन की तरफ बढ़ी, रिनेसा आया, साइंटिफिक एक्सप्लोरेशन हुई, तो बात होने लगी कि अगर हर किसी को फुली लिबर्टी होगी तो सोसाइटी के अंदर एक दूसरे को मार के लोग खा जाएंगे एंड इट विल बिकम अ जंगल राज। So to prevent that thing, we developed, or the historical times got this idea of positive liberty, where you will exercise your liberty. आपको जो करना है आप करिए, provided that do not harm the other person. So इसको बोलते हैं harm principle. आप अपने घर में अपने आप को पीटिए, आप अपने कमरे में बैठ के सिगरेट दारू कुछ पिए, लेकिन अगर आप किसी पब्लिक प्लेस पे, आप मेट्रो में जा रहे हैं, आप ट्रेन में हैं, आप प्लेन में हैं, आप जेट में हैं, तो वहां पर जहाँ पब्लिक बैठी हुई है वहां आप इस तरीके का कोई भी एक्ट नहीं कर सकते जिससे कि दूसरे की लिबर्टी हर्ट हो। तो पॉजिटिव लिबर्टी जो है वो ये बात करती है कि आपकी लिबर्टी भी उतनी सेक्रेड है जितनी दूसरे की है। आप अपनी लिबर्टी के चलते दूसरे को पीस नहीं सकते, दूसरे के सर पे चढ़कर आप नहीं बैठ सकते, तो उसको बोला जाता है पॉजिटिव लिबर्टी। प्रवेश, यस, तो इसमें आप बताइए कि जो पॉजिटिव लिबर्टी और नेगेटिव है, इसमें वाइडर कौन सा है? वाइडर इज पॉजिटिव लिबर्टी। क्यों वाइडर है? It is wider because it is talking about liberty of everyone, Yes. not of powerful person. In the negative, the liberty will be exercised of powerful people. True. Now the equality. I have one question about liberty. Ki when we talk about that, do you have the liberty to convert people to other faith if they're voluntarily ready to be, getting converted to that particular religion or faith? Yes. So is that allowed? Yes. You can convert, you can preach. आप कर सकते हो विदाउट एनी फ्रॉड। तो इसलिए लिखा रहता है कि आप अगर अपना आइडेंटिटी छुपाए हो तब फिर आपका लिबर्टी नहीं है। तो फिर इसमें आप कन्वर्ट करा सकते हो, आप बात कर सकते हो। तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज को रोकने के लिए ये जो बिल में आता है कि एंटी कन्वर्जन बिल है, उसके अंदर में लिखा हुआ था फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज, तो वहाँ लिबर्टी नहीं। तो एक इसमें कोट भी है, माई लिबर्टी एंड्स वेयर नोज बिगिंस, कि आप कुछ भी बोल सकते हो लेकिन सामने वाला का हर्ट प्रिंसिपल, जैसे प्रवेश ने बोला हर्ट प्रिंसिपल, हर्ट नहीं कर सकते। तो प्रवेश कंटिन्यू। Okay, if it is happening in transparent manner, so then it is like allowed, it is permissible. हाँ, Yes. वॉलेंट्री, आपने खुद बताया कि वॉलेंट्री है, वो खुद से भी आ सकते हैं, जबरदस्ती नहीं हो रहा। कन्वर्जन जबरदस्ती होता है कभी कभी, तो इट हैज टू बी स्टॉप। Okay. प्रवेश, So the idea of liberty is taken from, anyone can tell me? फ्रेंच रिवॉल्यूशन। Yes. So French Revolution 1789. From there we took the idea of liberty of thought, expression, belief, faith, and worship. Yes. So now we are talking about the equality and equality of status and opportunity, and to promote among them all. Now equality is equality signifies that every person is equal in every term. If someone is rich, poor is also equal to him. If someone is coming from lower caste, the upper caste is also equal to him. So any sort of discrimination which is prevalent in the society, that will be considered as null and void in the eyes of Constitution when it is treating the question of equality between two persons. Every two person will be considered as equal of status. आपका जो भी स्टेटस हो, आप किसी भी कास्ट से आते हो, आपके पास कितना ही पैसा हो, आप इक्वल माने जाएंगे। अपॉर्चुनिटी, आपको अगर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में जाना है, आपको अगर प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में जाना है, तो स्टैंडर्ड क्राइटेरिया के बिहार पे आपका सिलेक्शन होगा और आपके साथ इक्वालिटी प्रमोट की जाएगी। आपको ये नहीं बोला जाएगा आप ब्राह्मण कास्ट से, आप क्षत्रिय कास्ट से, तो आपको, आप अगर डोमिनेंट कास्ट है तो आपको ज्यादा रिजर्वेशन दी जाएगी, आपको नंबर ज्यादा दिए जाएंगे, या फिर आपको सिलेक्शन जल्दी होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जो मेरिटोरियस सिस्टम होता है उसको प्रमोट किया जाएगा। टू प्रमोट देम अमंग ऑल, पूरी सोसाइटी के अंदर जो है इक्वालिटी को प्रमोट किया जाएगा। और इक्वालिटी ऑफ टाइटल, एक यहाँ पर ये भी कॉन्सेप्ट होता है कि इक्वालिटी, जैसे पहले के टाइम पे हमारे यहाँ टाइटल्स हैं मनसबदार, राजा, विराज, चक्रवर्ती, ये सारे जो टाइटल्स हैं जो शो करते हैं आपके एलिटनिज्म को, आपके एलिनिएशन को, आपकी पावर को, आपकी मसल एंड आपकी मनी पावर को, वो सारे नल एंड वॉइड कर दिए जाएंगे। और जो टाइटल्स भारत सरकार आपको देती है उनका भी उपयोग आप एक रीजनेबल फॉर्म में करेंगे, ना तो आप उस अपने नाम को उससे संबोधित करेंगे उस टाइटल से, और ना आप उससे खत्म करेंगे। आपको ये बोलना आर्टिकल 18 पड़ेगा में ना प्रवेश, ये वाला क्या सर, पद्मश्री और पद्म भूषण वाला जो अवार्ड है, हाँ उसमें ठीक है। इसको ना तो आप प्रेफिक्स के तौर पे यूज कर सकते हैं ना सुफिक्स के नाम पे। एंड द लास्ट वी हैव फ्रेटर्निटी। प्रवेश, आई वांट टू ऐड इनइक्वालिटी पॉइंट।
पहले जो यहाँ पे इक्वालिटी लिखा हुआ है, इट इज इक्वल अमंग द इक्वल्स, इसलिए कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्वेशन आता है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन आता है, क्योंकि लिखा हुआ है इक्वालिटी टू प्रमोट इक्वल स्टेटस, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी हर जन को मिलना चाहिए, तो हर जन को कब मिलेगा, जब आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करोगे तभी सबको मिलेगा अपॉर्चुनिटी। इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन का कॉन्सेप्ट आता है, पॉजिटिवली डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो ताकि जो नीचे लोग हैं उनको ऊपर उठाया जाए, ऊपर वाले लोग को नीचे नहीं दबाया जाए, नीचे वाले को ऊपर उठाया जाए। तो अपॉर्चुनिटी सबको इक्वल मिलना चाहिए, तो इक्वालिटी अमंग द इक्वल्स। तो यहाँ पर जो आईज ऑफ लॉज के सामने में इक्वालिटी की बात होता है, यू आर इक्वल, इक्वल बिफोर द लॉ। प्रवेश। Yes. तो अब हम बात करते हैं फ्रेटर्निटी के बारे में। तो फ्रेटर्निटी सिंपल, फ्रेटर्निटी इज कंसिडर्ड एज ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड, द फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस, कॉमननेस, कम्युनिटीनेस, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. So it is emphasized here that if the society will not be having the principle of fraternity, there, if the brotherhood will not be there, that will not help in dignifying the individual, and that will break the unity and integrity of the nation. We can use the example of regional patriotism versus national patriotism here. अगर सन ऑफ सॉइल थ्योरी, रीजनल पेट्रियोटिज्म, ये सारी चीजें प्रमोट होंगी, तो जो फ्रेटर्निटी है इंडियन, जो इंडियन फ्रेटर्निटी की बात होती है, यानी हिंदुस्तानी भाईचारा, वो जो है वो खत्म हो जाएगा। हर जगह यही भाईचारा होगा, हरियाणवी भाईचारा, पंजाबी भाईचारा, मद्रासी भाईचारा, बंगाली भाईचारा। तो इस चीज को खत्म करने के लिए यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल है फ्रेटर्निटी, जिसका मतलब यही है कि आपको इंडियननेस को प्रमोट करना है, और आपको इंडियननेस को प्रमोट करके जो रीजनल पेट्रियोटिज्म है उसको कहीं ना कहीं उसको नीचे रखना है। तो सन ऑफ सॉइल थ्योरी या फिर रीजनल पेट्रियोटिज्म, ये सारे डेंट हैं, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो हमारा ओवरऑल प्रिंसिपल है फ्रेटर्निटी का। तो इसी वजह से हमारे यहाँ आर्टिकल 5 के अंदर बात की जाती है कि सिंगल सिटीजनशिप जो दी जा रही है यहाँ पे, वो इसीलिए दी जा रही है क्योंकि सब लोग अपने आप को इंट्रोड्यूस करें एज एन इंडियन रादर देन एज अ रीजनल इंडिविजुअल और अ कम्युनिटी इंडिविजुअल और कास्ट इंडिविजुअल। Yes, Kaushik, you can speak. yes. And regarding fraternity, we discussed in the newspaper that yesterday or day before yesterday, Kannada activists, they were talking about the Kannada language against the English and Hindi domination in whole of Karnataka and particularly in Bangalore. So this also showcases they are acting against the fraternity. इससे नॉर्थ साउथ डिवाइड बढ़ेगा, सोसाइटी के अंदर लिंग्विस्टिक क्लासेस बढ़ सकता है। तो इसको अश्योर करने के लिए, फ्रेटर्निटी प्रमोट करने के लिए देयर आर सेवरल एस्पेक्ट। जैसे इंडिया के अंदर में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, जिसमें हर एक अलग स्टेट को अकोमोडेट किया गया। फिर बात कर सकते हैं 6th शेड्यूल भी फ्रेटर्निटी को प्रमोट करने के लिए, इंटीग्रेशन करने के लिए किया गया। तो इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट इसमें आएगा फ्रेटर्निटी में, कैसे भाईचारा को प्रमोट करे, सोशल कैपिटल कैसे प्रमोट करे, ह्यूमन कैपिटल कैसे प्रमोट करे सोसाइटी के अंदर में। और लास्ट पॉइंट, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। पहले यूनिटी ऑफ इंडिया नेशन था, या नेशन लिखा हुआ है, कंट्री नहीं लिखा हुआ है। तो प्रवेश आप बताना पहला। दूसरा चीज की 1976 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट में यूनिटी ऑफ नेशन को अमेंड करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी शब्द इसमें ऐड हो गया, ऑफ द नेशन लिखा हुआ है। तो पहले नेशन बताओ प्रवेश कि नेशन क्यों है, कंट्री क्यों नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो देयर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द टर्म कंट्री एंड नेशन। कंट्री simply represents the territory, the ट्रू। people. But nation represents something more. Nation represents your country, nation represents your territory, nation represents your sovereignty, nation represents the intangible form of idea of India. तो नेशन यहाँ पर हम बात करते हैं नेशन स्टेट, नेशन स्टेट। तो स्टेट जो होता है वो दिखता है, नेशन दिखता नहीं है। नेशन एक आइडियोलॉजिकल कंसेप्ट होता है जिससे आप अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस कंट्री से। यानी अगर मैं बोलूं कि इंडिया कैसा दिखता है, तो इंडिया कैसा दिखता है उसके लिए मुझे टर्म का यूज करना पड़ेगा नेशन, नेशन स्टेट। इंडिया इज ए नेशन स्टेट। अगर मुझे बात करना है कि इंडिया की टेरिटरी कैसी है, तो मुझे बात करना पड़ेगा कि इंडिया इज अ स्टेट व्हिच इज हैविंग टेरिटरी फ्रॉम हियर टू देयर एंड देयर टू हियर। So that is the broader version of the state nation, which promotes the feeling of country and the association of its citizens with that country in the ideological concept, in the ideological apparatus. So that signifies nation. उसकी फिलोसफी को प्रमोट करता है टर्म, उसके आइडियल्स को प्रमोट करता है नेशन टर्म, उसके जो कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स हैं उनके जो चेरिश आइडियाज हैं उनको प्रमोट करता है नेशन, कि हमारा राष्ट्र कैसा है, कैसा होगा, कैसा होना चाहिए, वो नेशन प्रमोट करता है रादर की स्टेट।
state is a reserved or we should say state is a established fact, but nation is a rising and the evolving fact. प्रवेश So the last और thing हिंदी में yes. आई विल ऐड, नेशन का हिंदी जो है राष्ट्र होता है, स्टेट का होता है राज्य, और कंट्री का होता है देश. तो ये तीनों डिफरेंसेस है इसमें. कंटिन्यू करो. But when we talk Kaushik in the political science terms, Hmm. we do not describe state as a state Raj. We describe state as a country itself. So in our Constituent Assembly, this 26th day of State is a nation state, basically. That's what you can say. yes, It is coming up in the modern times. जब आप नेशन स्टेट की बात करते हो तो वो स्टेट है, और जब स्टेट is coming up with the idea how to govern and what will be its intrinsic elements, then you talk about nation. So state is nation state term. In general words, one can say that it is all about the territorial aspect and its intrinsic aspect. So constitution comes into picture when, Pravesh, when we say the state is there or nation state is there, when the constitution is there. it is nation state. Nation state. Thank you. So the last thing about the preamble is in our Constituent Assembly, the 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. So this is the specific date on which the Constitution was finally finalized by the Constituent Assembly makers, and the total composition of the members was 389. But on this day, 26th November 1949, 4 of our the Constituent makers but died, and that is why the 384 number, the majority, the 384 signed the Constitution, and we gave ourselves to this Constitution. And finally, on the 26th January, when we celebrate our Republic Day, we finally let this Constitution start in its full spirit and its full effectiveness. We have finished, Pravesh. Okay, thank you so much, and we'll be meeting with the next series on the same chapter preamble. Keep watching Ansakari, and we are hoping that we are delivering what is required and what is unique. Thank you so much.